Welcome. Today we're going to start a new chapter of chemistry, and the reason why I'm starting this new chapter is because it's very important for this standard. This chapter decides whether you are weak or strong in chemistry. So without wasting our time, we're going to start this chapter. So before that, we have to know what is atom and what is molecule. So atom, we know atom is the smallest particle. Okay, it is the smallest particle of a matter. A matter means a substance that has mass and a volume. Okay, so atom is the smallest particle of a matter, and molecule is the smallest particle of a compound. And a molecule is the smallest particle of a compound. And now, what is a compound? Compound is nothing but collection of two or more than two more than different kinds of elements. Okay, so we will check out or we will discuss about them later on, but before that we have to start a new thing, or we have to discuss about something, that is the Latin name of some elements, of some particular elements. तो अभी हम कुछ particular elements के Latin name को देखेंगे. Latin name means the original name of that element. Okay, so I know that you won't understand what is element now, but still I will start the chapter 2 now, chapter 2 also. Okay, so sodium, the Latin name of sodium is natrium, and the symbol is Na. Now similarly, potassium, the Latin name is kalium, and the symbol is K. So I would request you to take the screenshot of these 11 elements that have their Latin names. Okay, so it is nothing to discuss here, it is nothing to explain, because it is all about memorizing this. Okay, so this part consists of memorizing. Now from there we have to explain, I have to explain actually. So अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लॉ जो केमिकल कम्बिनेशन में हमें हेल्प करता है या फिर केमिकल कम्बिनेशन के लिए बने हुए हैं. तो हमें ये फर्स्ट थ्री, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली वन और टू हमें जानना पड़ेगा क्या है ये, क्योंकि नंबर 3 से हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस एस चंद की बुक में अप टू 3 तक, मतलब क्लास 9 के स्टैंडर्ड में बताया गया है. ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देन गे-लुजैक्स लॉ ऑफ gaseous volume, and Avogadro's law. These 6 laws are used in chemical combination. So first 3 are included in class 9, but most prominent are first and second. Okay, so now we will discuss one by one what is law of conservation of mass. So law of conservation of mass क्या कहता है, देखते हैं, जानते हैं. So during a chemical reaction, mass remains conserved. So mass remains conserved रहता है, constant नहीं. तो एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तब क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो मास है वो कॉन्जर्व रहेगा. ठीक है, रहता है मतलब रिएक्शन से पहले जितना भी टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही टोटल मास रहेगा. मतलब ये फिजिक्स का वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा है जो हमने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या पढ़ा था हमने कि टोटल मोमेंटम, टोटल पी बिफोर collision, it will be equal to total p means momentum after collision. That means m1 u1 plus m2 u2 is equal to what, m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या बोला कि रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास रहेगा या फिर है उतना ही टोटल मास रहेगा रिएक्शन के बाद भी. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन का मास क्या है, एटॉमिक मास बाद में हम पढ़ेंगे, वो है 12 ग्राम.
12 ग्राम नहीं, 12 AMU, या फिर बोल सकते हो 12 EU मीन्स यूनिफाइड मास, 12 U। और ऑक्सीजन का है 16 U। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 16 इंटू 2 मीन्स 32 U। और यहाँ पर तो बिफोर रिएक्शन कितना है, 12 U प्लस 32 U मीन्स 44 U है बिफोर रिएक्शन। और आफ्टर रिएक्शन कितना है, देखो फिर से C है 12 U प्लस O कितना है, 2 बार है तो 32 U, तो 32 प्लस A कितना हुआ, 44 U। अरे ठीक है, तो देखो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन टोटल मास सेम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कॉम्बाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, बिकॉज इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। अब ये रिवर से आप एक काम करते हो कि रिवर में जाने के बाद वहाँ से बोतल में उसका रिवर का मतलब नदी का पानी लेके आओ, फिर एक फ्रेश वाटर पानी लेके आओ। फ्रेश वाटर मतलब इट कैन बी ओशन, नॉट ओशन, सप्लाई वाटर, जो सप्लाई में आता है सुबह या फिर शाम को, सप्लाई वाटर, उसका पानी आप बोतल में इकट्ठा करो। ठीक है, फिर मिनरल वाटर जो बोतल में मिलता है प्लास्टिक के बोतल्स में, मिनरल वाटर, या फिर फिल्टर में, फिल्टर नहीं, RO में, एक्वा गार्ड, कैंट RO कुछ भी हो, उसमें से पानी को आपको लेना है बॉटल में। ठीक है, इसमें सपोज बॉटल B1 में रखो, इसको बॉटल B2 में रखो, इसको B3 में रखो। फिर फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर करने के बाद जो वाटर मिलता है उसको कलेक्ट करो, इसको रखो B4 में, बॉटल B4। और बिस्लरी वाटर, बिस्लरी को भी मत छोड़ो, बिस्लरी B5 में रखो। ठीक है, तो तीनों मतलब पाँचों बोतल में से आपको टेस्ट करना है, मतलब आपको यू कैन से यू हैव टू एग्जामाइन। तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेश रिवर वाटर में जो पानी है उसका मतलब हाइड्रोजन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम 1 है। सिमिलरली फ्रेश वाटर में भी सेम ऐसा है, फिर मिनरल वाटर में भी ऐसा है, फिर फिल्टर्ड वाटर में भी ऐसा है, और बिस्लरी वाटर में भी ऐसा है। मतलब H2O ही है, H3O2 हो नहीं हुआ, H2O5 भी नहीं हुआ, HO2 भी नहीं हुआ। मतलब क्या, हमेशा H2O मतलब क्या, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। अभी एलिमेंट क्या है यहाँ पर, एलिमेंट है H और O, तो अभी एलिमेंट चेंज हुआ क्या, H2 से H हुआ क्या, H2 से H3 हुआ क्या, नहीं हुआ, O से O2 हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब क्या, एलिमेंट सेम रहा, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सेम प्रोपोर्शन बाय मास मीन्स नाउ यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, देखो H2:2 रेशियो करेंगे अभी O, तो H हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम। ओके, मैं बाद में कुछ चार्ट आपको दे दूँगा, लास्ट में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन में है 1 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन का 1 एटॉम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। तो देखो अभी इसमें है 1, इसके दो बार है, तो 1 इंटू 2 इतना ग्राम, तो 2 ग्राम, 2 ग्राम इस टू ऑक्सीजन का तो एक ही है, तो 16 ग्राम, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 16 ग्राम कितना होता है, 1/8, तो रेशियो 1/8 है। सिमिलरली आप कहीं भी जाओ, रिवर वाटर में भी क्या मिलता है आपको, H2O, so रेशियो क्या हो गया, 1:8। फ्रेश वाटर में भी H2O मिला आपको, उसमें भी रेशियो 1:8। सिमिलरली बिस्लरी में आपको क्या मिला, H2O मिला, मतलब क्या, 1:8। तो रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट रेशियो है, देखो 1:8 आता है हमेशा, ऑलवेज। ये कभी नहीं होगा कि 1:2 से 0:2 आ जाता है, तो कभी होगा नहीं। फिर 2:3 आ जाता है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, हमेशा 1:8 रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन भी होगा, एक ही बात है। ओके, डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट मीन्स, अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का तो कुछ है नहीं, इसे बस आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि +1 में, अच्छा, तो एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिकली अगर चार्ज होता है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज दें, मतलब इसको थोड़ा सा पावर दें, तो ये 2 तरीके के चार्ज निकालता है। पहला है पॉजिटिव चार्ज
दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ना पॉजिटिव चार्ज वाले को बोला जाता है कैटायन और नेगेटिव वाले को बोला जाता है एनायन। तो कैटायन CATION और एनायन मीन्स ANION। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को क्या बोला जाता है? आयन, ION, आयन। तो आयन के दो भाग हैं, मतलब टू टाइप से। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन। मतलब एटम को अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो क्या मिलेगा? आयन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब मेटल्स जो हैं, तो एक फन फैक्ट, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज निकालते हैं। दैट्स वाई देखो गोल्ड जो है मेटल है इसलिए 3+ हो गया, ठीक है ना। अभी देखो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन BROMINE, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, इससे नॉन मेटल है इसलिए तो नेगेटिव चार्ज, ओके। दैट्स वाई ब्रोमीन का ब्रोमाइड जो है वो Br-1 होता है, ठीक है। अगर ब्रोमीन मेटल होता है, सपोज एज्यूम दैट मेटल, इट इज़ मेटल, इफ इट वेयर ए मेटल, तो ये हो जाता है Br ब्रोमाइड Br+2, सॉरी Br+, अगर मेटल होता तो, ठीक है। वैसे ही मेटल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है मरकरी, जो ब्रोमीन की तरह ही है। मतलब ब्रोमीन की तरह मतलब ये नहीं कि नॉन मेटल है, मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, ओके। ये याद रखो कि मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, या मेटल होता है, ठीक है। मेटल हमें क्या पता है कि मेटल हमेशा मतलब जनरल केस में जनरली मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं हमेशा मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, इसके बाद मरकरी नहीं, कॉपर, आयरन। तो ज़्यादातर हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो सॉलिड है वही मेटल है और जो सॉलिड नहीं है वो नॉन मेटल है। ऐसा नहीं है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। सो अभी जो ऑक्सीडेशन चार्ट है उसमें देखो सोडियम मेटल है इसलिए Na+1, पोटेशियम K+, लिथियम L1+, ऐसे करके आपको इसको याद करना है। इट इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग केमिकल कैलकुलेशंस। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट रखना है अभी। इसके बाद +1 +2 -1 +1 +3 -3 +2 और भी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इतना तक तो यहाँ से, और अब नीचे नहीं है, और इतना तक ही है। इट इज़ फ्रॉम हियर जिंक तक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। सो नाउ इट इज़ ऑक्सीडेशन चार्ट नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट, उसको मेमोराइज करना है। सिमिलरली एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर चार्ट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ यूज एवरीवेयर, मतलब ये हमेशा हर जगह यूज़ होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर नहीं, मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको भी आपको मेमोराइज तो करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दिस वी कैन नॉट वी कैन नॉट सॉल्व एनी केमिकल प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस। तो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, सिंबल और एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का सब कुछ 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। इसके बाद आता है हीलियम, ये है एटॉमिक मास 2 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास सीरियल वाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा। तो अप टू 13 आई गेस आपने रख लिया होगा, 27 एक्चुअली, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ 27। तो आप आई होप आपने एल्यूमिनियम तो कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। नाउ फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स दिस इज़ द रेस्ट। 20 तक ही प्रोमिनेंट वाले हैं, मतलब 20 तक ही ज़्यादातर हैं एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट वाले, और ज़्यादा इफ़ यू वांट यू कैन लर्न अप टू
atomic number 50 or 30 or 40 up to atomic number 40, not atomic mass. Okay, atomic numbers atomic mass can be same. देखो यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग सीरियल में जा रहे हैं, कंसेक्यूटिव है. Now after this we are going to know about some definitions. Before that we have to say something very useful. जो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट है वही वैलेंसी भी है. नाउ व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वैलेंसी एक्चुअली किसी भी मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल के भी हो सकता है, मेटलॉइड का भी हो सकता है. ठीक है, सो इन तीनों में से किसी का भी वैलेंसी कुछ भी हो सकता है. मैक्सिमम वैलेंसी अप टू इट कैन बी 7, इट कैन बी 8. ओके, तो अभी देखो सोडियम का वैलेंसी क्या हुआ फिर +1. वैलेंसी के और एक इंटरेस्टिंग है कि वैलेंसी में आपको प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा. अगर बोले कि वैलेंसी ऑफ सोडियम तो आपको बोल देना है बस 1. अगर बोल रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम तब आपको बोलना पड़ेगा +1. ऑक्सीडेशन नंबर तब बोलना पड़ेगा +1 या फिर 1 प्लस एनीथिंग, एनी वन +1 या फिर 1 प्लस. अगर आपको बोले वैलेंसी ऑफ सिल्वर तो वैलेंसी ऑफ सिल्वर होगा ओनली 1. अगर बोले कि ऑक्सीडेशन तो आपको लिखना पड़ेगा +1. सिमिलरली कैल्शियम एक मेटल है. कैल्शियम का अगर वैलेंसी बोल दें तो आपको बोलना पड़ेगा ओनली 2. लेकिन अगर बोल दें कि ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको बोलना पड़ेगा +2. ठीक है, तो और एक लेते हैं एग्जाम्पल, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस नहीं, एक नेगेटिव वाला लेते हैं. क्या लिख सकते हैं? माइनस में. अच्छा, सब वो समझ लिया. नाइट्रेट. देखो नाइट्रेट में 3 प्रकार के होते हैं. नाइट्रेट मतलब NO3, फिर नाइट्राइट NO2, इसका नाइट्राइड, लास्ट में DE होगा. इसमें होगा सिर्फ N, ओनली N. तो नाइट्रेट का अगर वैलेंसी बोले तो सिर्फ 1. इसका भी 1, इसका होगा 2. ओके, सॉरी इसका होगा 3. अगर वैलेंसी बोले कि ऑक्सीडेशन चार्ट तो इसका होगा -1, इसका होगा -1 और इसका होगा -3. वाई? बिकॉज नाइट्राइड एक ही जगह से आया है, वो है नॉन मेटल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ ए नॉन मेटल, इसीलिए माइनस में हुआ चार्ज. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं बोला जा सकता क्योंकि डिस जो चार्ट है इसको आपको मेमोराइज भी करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर.